A very good morning to all of you. Students, I just hope you all are happy and healthy. Students, we are basically continuing the chapter 6 learning. And in previous few video, we had understand the concept of learning, the factors which are affecting the learning, basically the features or the characteristic of learning, then the paradigms of learning. And in paradigms of learning, we had completed the classical conditioning, the concept of classical conditioning, which is given by even Pavlov. And today we are going to discuss the determinants of classical conditioning, and after that the second concept, the second paradigm of learning is the operant conditioning, which is also known as instrumental conditioning. So let's start the determinants of classical conditioning. Determinants of classical conditioning. The first one is time relation between stimuli. ठीक है, टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुली. इसमें 4 टाइप की कंडीशनिंग है हमारी. फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग पहले तो ये है. ठीक है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग. ठीक है, सिंपली ये होता क्या है. फॉरवर्ड कंडीशनिंग दैट्स मीन यूएस प्रेजेंटेड फर्स्ट. ठीक है, यूएस को पहले प्रेजेंट किया जाता है, आफ्टर दैट सीएस प्रेजेंट किया जाता है. दिस इज द फॉरवर्ड कंडीशनिंग. And in the backward conditioning, the CS is presented first, then the US is presented. Okay? So this is the backward conditioning. Now there are 4 types of मतलब जो combinations हो सकते हैं, which is the simultaneous conditioning, second is delayed conditioning, the next is trace conditioning, and the next one and the last one is backward conditioning. Okay. The previous 3 is basically known as forward, and the last one is the backward conditioning. Okay. So how quickly and strongly acquisition of a response occur in classical conditioning depends on several factors, and some of the major factors influence learning a CR are described below. First is time relation between stimuli. The classical conditioning procedures discussed below are basically of 4 types based on the time relation between the onset of conditioned stimulus. That means जो S और S में conditioning कराई जा रही है, वो time related phenomena के basis पे क्या क्या combinations हो सकते हैं उसके. These are the 4 types. So type based on the time relation between the onset of conditioned stimuli and unconditioned stimuli. That means the CS and the US. And the first 3 are called forward conditioning. The first 3 are called forward conditioning, जहाँ पे पहले US present है, then CS present है. And the backward conditioning, and the 4th one is called backward conditioning procedure. The basic experimental arrangements of these procedures are as followed. ठीक है, तो क्या हो सकता है. पहला दैट्स मीन द साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. दैट्स मीन व्हेन द CS एंड US आर प्रेजेंटेड टुगेदर, इट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में क्या हो रहा है. साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में हमारा जो US है, US एंड द CS,
ये साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट हो रहा है, तुरंत ऐसे बेल रिंग हो रही है, जब तक वो खत्म नहीं हुई तुरंत ही फूड प्रेजेंट हो गया, ठीक है। बेल कुछ सेकंड, सपोज 1 सेकंड तक बेल रिंग हुई, सो बेल जैसे ही रिंग हो रही है उसकी खत्म होने के पहले ही फूड प्रेजेंट हो गया, दैट्स मीन द साइमल्टेनियस, ये दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, दिस इज द साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। यहाँ पे टाइम इंटरवल बिल्कुल ही नहीं है, 0 है, टाइम गैप बिल्कुल नहीं है, यूएस एंड सीएस आर प्रेजेंटेड टुगेदर। नाउ द सेकेंड इज in delay conditioning, the onset of CS precedes the onset of US and the CS ends before the end of the US, ठीक है। डिले कंडीशनिंग में क्या हो रही है, द ऑनसेट ऑफ CS precedes the onset of US, मतलब CS के खत्म होने के पहले US है, and the CS ends before the end of the US. डिले कंडीशनिंग दैट्स मीन जहां पे CS पहले प्रेजेंट हो रहा है, सॉरी US पहले प्रेजेंट हो रहा है, देन उसके बाद CS प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। पहले US प्रेजेंट हो रहा है, आफ्टर दैट CS प्रेजेंट हो रहा है। नाउ द थर्ड वन इज इन ट्रेस कंडीशनिंग, द ऑनसेट एंड एंड ऑफ द CS precede the onset of US with some time gap between the two, मतलब यहाँ पे CS प्रेजेंट हो रहा है, एंड हो रहा है, उसके बाद कुछ सेकेंड्स का गैप दिया जा रहा है, देन CS जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। सो यहाँ पे ट्रेस कंडीशनिंग मतलब कुछ टाइम पीरियड का गैप दिया जाता है। इन द ट्रेस कंडीशनिंग देयर इज अ US, देन द टाइम गैप, देन CS, ठीक है। यहाँ पे पहले US प्रेजेंट हुआ, US प्रेजेंट होके खत्म हो गया, ठीक है। सपोज 2 सेकेंड तक वो प्रेजेंट हुआ, आफ्टर कंप्लीटिंग द 2 सेकेंड देयर इज अ time gap of 1 second or maybe 2 second, after that the CS is presented. So this is the trace conditioning. Now the last, these three are basically the forward conditioning, जहां पे पहले US presented है, ठीक है, या तो CS जो है वो simultaneously उसके साथ presented है, या उसके खत्म होने के जस्ट आफ्टर दैट प्रेजेंटेड है, या आफ्टर फ्यू टाइम, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो प्रेजेंटेड है। सो ऑल टाइम जब भी है यूएस हमारा जो है वो फर्स्ट प्रेजेंटेड है, देन सीएस प्रेजेंटेड है। सो दिस इज द फॉरवर्ड टाइप ऑफ कंडीशनिंग। नाउ द लास्ट वन इज द बैकवर्ड कंडीशनिंग। सो इन बैकवर्ड कंडीशनिंग द यूएस प्रेसीड्स द ऑनसेट ऑफ सीएस, ठीक है। यहाँ पे जो यूएस है वो सीएस को मतलब प्रेजेंट पहले हो रहा है, देन यूएस प्रेजेंट हो रहा है। द यूएस प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ सीएस, ठीक है, पहले सीएस प्रेजेंट हो रहा है, देन यूएस प्रेजेंट हो रहा है, सीएस देन द यूएस। सो दिस इज द लास्ट वन कंडीशनिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप पैवलोव के डॉग वाले एक्सपेरिमेंट को लेके चलो, तो सबसे पहले हमने फूड प्रेजेंट किया, आफ्टर प्रेजेंटिंग द फूड, जैसे हमने फूड प्रेजेंट किया हमने फिर बेल रिंग की, बेल की साउंड प्रेजेंट हुई। सो दिस इज द बैकवर्ड टाइप ऑफ कंडीशनिंग, जहां पे पहले क्या हो रहा है, पहले फूड प्रेजेंट हो रहा है, पहले सीएस प्रेजेंट हो रहा है, देन उसके बाद हमारा यूएस प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो सॉरी मैं अपोजिट बता दी, ठीक है। इन बैकवर्ड कंडीशनिंग द यूएस प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ सीएस, ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि पहले यूएस प्रेजेंट हो रहा है फिर सीएस प्रेजेंट हो रहा है। सो दिस इज द बैकवर्ड कंडीशन, यहाँ पे पहले फूड प्रेजेंट हो रहा है और फिर उसकी बेल की रिंग आ रही है, ठीक है। तो फूड इज द यूएस देन द सीएस, उसके बाद बेल रिंग हो रही है। सो ऐसा तो नेचुरली होता था। सो इसमें क्या हो रहा है, पहले बेल रिंग हो रही है, उसके बाद फूड प्रेजेंट हो रहा है, ठीक। सो द CS then after that the US. So it is now well established that delayed conditioning procedure is the most effective way of acquiring a CR, and simultaneous and trace conditioning procedure do lead to acquisition of a CR, but they require greater number of acquisition trial in comparison to the delay conditioning, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल कंडीशनिंग किसको बोला जा रहा है, डिले कंडीशनिंग को, ठीक है। डिले कंडीशनिंग दैट्स मीन बेल रिंग हुई, देन बेल रिंग होके एंड हो गई, देन कुछ सेकेंड्स का टाइम गैप दिया गया, फिर फूड प्रेजेंट हुआ। सो डिले कंडीशनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग। अगर ऐसी कंडीशन है सो डेफिनेटली जो कंडीशनिंग होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी और इंस्टेंट होगी, लेसर ट्रायल रिक्वायर्ड होंगे इस टाइप की कंडीशनिंग को डेवलप करने में। एक्विजिशन में लेसर ट्रायल रिक्वायर्ड होंगे, बहुत कम नंबर ऑफ ट्रायल्स लगेंगे। नाउ जबकि अगर हम बात करें अदर टू टाइप ऑफ कंडीशनिंग, फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियस कंडीशनिंग एंड ट्रेस कंडीशनिंग, तो डेफिनेटली इसके थ्रू भी एक्विजिशन होगा, कंडीशनिंग होगी, बट स्टिल दे रिक्वायर मोर ट्रायल्स, मोर टाइम।
So it may be noted that the acquisition of response under backward conditioning procedure is very rare. Backward conditioning, because your need is fulfilled. When there is a food अगर आपके सामने आ गया, so you definitely are concentrated on food. आप hungry हो, so definitely आप food complete करने में और अपनी need को fulfill करने में आपका focus रहेगा, rather than the bell of sound. ठीक है, बेल की साउंड पे आपका फोकस जाएगा ही. सो द बैकवर्ड टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज वेरी रेयर, क्योंकि आपकी नीड सेटिस्फाइड हो जा रही है. ठीक है, जो भी नीड है जिसकी वजह से कंडीशनिंग हो रही है, जो भी आपका वो स्टिमुलस है, वो उसकी नीड फुलफिल हो रही है, तो आप वहां पे फोकस करोगे, वहां पे आपका अटेंशन रहेगा, एंड द एसोसिएशन एंड द कंडीशनिंग बिटवीन द टू स्टिमुलस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी नीड वहां पे सप्रेस हो जा रही है. सो दिस इज द काइंड ऑफ अनदर टाइप ऑफ कंडीशनिंग. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुली. सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, टाइप ऑफ साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, सॉरी अनकंडीशनल स्टिमुलस. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन इज द टाइप ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुली. Type of conditioned stimuli. The unconditioned stimuli used in studies of classical conditioning are basically of two type. ठीक है, ये two type के होते हैं basically, that is appetitive and aversive. So there are two type of stimuli, the appetitive and the aversive. ठीक है, appetitive that mean मतलब ऐसा स्टिमुलस जिसे आप अचीव करना चाहो, जिसको आप पाना चाहो. फॉर एग्जाम्पल द फूड एक एपिटेटिव स्टिमुलस है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, जिससे अपनी नीड को ग्रेटिफाई करना चाहते हो. ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ एपिटेटिव. इसे आप पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे भी समझ सकते हो. वेल अभी आपने रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड किया. एवर्सिव दैट मीन कुछ ऐसा स्टिमुलस जिससे आप एस्केप करना चाहो. ठीक है, जिससे आप बैकवर्ड जा रहे हो, जिससे आप बचना चाहो. फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको चॉकलेट दी जाएगी तो आप उसे लेना चाहोगे, बट अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो आप उससे बचना चाहोगे. सो जब जिस चीज से आप बचना चाह रहे हो, आप स्केप कर रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, दिस इज दी अवर्सिव कंडीशनिंग. और जिसे आप अचीव करना चाह रहे हो, आप आगे उसे पाना चाह रहे हो, दिस इज दी एपिटेटिव कंडीशनिंग. सो the unconditioned stimuli used in studies of classical conditioning are basically of two types, and that is appetitive and aversive. Appetitive unconditioned stimuli automatically elicit approach response such as eating, drinking, cursing, etc., and these responses give satisfaction and pleasure. On the other hand, aversive unconditional stimulus are such as noise, bitter taste, electric shock, painful injections, etc. ठीक है, सो आपके एपिटेटिव स्टिमुलस कौन से होते हैं, जो आपको सेटिस्फाइड करते हैं और प्लेजरेबल होते हैं. बेसिकली दीज आर सेटिस्फैक्टरी एंड प्लेजरेबल. एवर्सिव ऐसे स्टिमुलस है जो बेसिकली मतलब पेनफुल होते हैं और जिससे आप बचना चाहते हो. सो पेनफुल एंड अनवांटेड यू कैन से. ऐसा कुछ भी जिसे आप नहीं पाना चाहो. ठीक है, so in appetitive stimulus these responses give satisfaction and pleasure. On the other hand, aversive unconditional stimuli such as noise,
Beater test, electric shock, painful injection, etc. So are painful and harmful and elicit avoidance and escape response. Avoidance and escape response को ये elicit करते हैं. And it has been found that appetitive classical conditioning is slower and required greater number of acquisition trial, but aversive classical conditioning is established in 1, 2 or 3 trials depending on the intensity of the aversive use. ठीक है, मतलब स्टडीज ये बताती हैं बेसिकली कि जो हमारी एपिटेटिव कंडीशनिंग होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजरेबल एंड द सेटिस्फैक्ट्री या सेटिस्फैक्शन जिस स्टिमुलस से मिल रहा है उसके बेसिस पे. सो यहाँ पे जो एक्विजिशन ट्रायल होता है, मतलब जिसमें डेवलपिंग जो ट्रायल होते हैं वो मोर नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्विजिशन वाले. एंड वो जो मतलब स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं कंडीशनिंग की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, एवरेज लेवल ऑफ स्ट्रेंथ रहती है. जबकि एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होता है, एवर्सिव अगर स्टिमुलस है तो डेफिनेटली 1, 2 और मैक्सिमम 3 ट्रायल्स में एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है, हम लर्न कर लेते हैं. एट द सेम टाइम ये जो कंडीशनिंग होती है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है. सो एज कंपेयर टू एपिटेटिव, एवर्सिव कंडीशनिंग इज मोर क्विक एंड द मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, एवर्सिव कंडीशनिंग जो होगी वो बहुत जल्दी होगी, लेसर नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड होंगे, एक्विजिशन ट्रायल्स, एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का कंडीशनिंग होगा. सो दिस इज द टाइप ऑफ स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस. ठीक है, कौन सा स्टिमुलस आप यूज कर रहे हो कंडीशनिंग के लिए, दिस इज द बेस्ड ऑन 2 टाइप. ठीक है, 2 टाइप के हो सकते हैं. नाउ मूव टू द थर्ड फैक्टर, इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुली. इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुली. ठीक है, this influence the course of both appetitive and aversive classical conditioning. More intense conditioning stimuli are more effective in accelerating the acquisition of conditioned response, and it means that the more intense the conditioned stimuli and the fewer are the number of acquisition trials needed for conditioning. ठीक है, मतलब ये यहाँ पे हम इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलीज की बात कर रहे हैं. दैट्स मीन हमारा स्टिमुलीज का टाइप ही हो गया, आइदर एपिटेटिव और एवर्सिव, किसी भी टाइप का होगा, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दी. मतलब अगर आप हंगर की बात कर रहे हो, हंगर इज द एपिटेटिव स्टिमुलस, अगर उसकी बात कर रहे हो, सो हाउ मच, मतलब कितने दिन से वो भूखा है, हाउ मच हंगर इज क्रिएटेड. ठीक है, कितना ज्यादा हंगर क्रिएट किया गया है. अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हंगर रहेगा, आप बहुत ज्यादा उसके लिए डेस्परेट रहोगे, सो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग होगी वो क्विक होगी, जल्दी होगी, स्टेबल होगी. अगर एपिटेटिव की बात करो, सो अगर माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाए, सो मे बी वो उतना इफेक्टिव ना हो, आप उतनी जल्दी ना जो कि लर्न करो, कंडीशनिंग उतनी जल्दी डेवलप ना हो. बट सपोज इफ द हायर लेवल ऑफ, मतलब हायर इंटेंसिटी का अगर इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करा जाएगा, दिया जाएगा, सो डेफिनेटली 1 ट्रायल में ही लर्निंग हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी. 1 ट्रायल में आप लर्न कर लोगे, कंडीशनिंग कर लोगे कि क्या आप किस चीज से आपको अवॉइड करना है. सेकेंड ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ज्यादा पेनफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल था बेसिकली. सो यहाँ पे हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट में हम यही बात करें कि भाई जो ये स्टिमुलस है, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इंटेंसिटी कितनी हायर है, कितनी ज्यादा हायर लेवल की, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल है. सो इसके बेसिस पे हमारा डिसाइड होगा कि कंडीशनिंग किस लेवल की होगी. सो दीज आर द बेसिकली 3 टाइप ऑफ determinants which influence the conditioning. ठीक है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को, कंडीशनिंग किस टाइप की हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं ये 3 फैक्टर्स. द टाइम रिलेशन बिटवीन द स्टिमुली, टाइम रिलेशन क्या है, 4 टाइप ऑफ टाइम रिलेशन था, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिले कंडीशनिंग एंड ट्रेस कंडीशनिंग एंड द बैकवर्ड कंडीशनिंग. Then the type of unconditional response, that unconditional stimuli, that is appetitive and the aversive. Now the intensity of CS. ठीक है, conditioned stimulus की क्या intensity है. If the intensity is increased, the time or the trial of the acquisition is decreased, and if the intensity is decreased, the trial of the acquisition is increased. So this is the 3 type of
determinants of classical conditioning. This is all about the classical conditioning. ठीक है, यहाँ पे आपका classical conditioning complete होता है, the concept of classical conditioning and the determinants of classical conditioning, and the measure is the experiment. जो experiment है वो बहुत important है, ठीक है, जो dog experiment है. Now move to the second type of conditioning which is known as operant or the instrumental conditioning. ठीक है, I will explain why this is known as instrumental and why this is known as operant conditioning. So first of all, what is operant conditioning? Operant or instrumental conditioning. ठीक है, this type of conditioning is basically given by B.F. Skinner. B.F. Skinner, who is the founder of behaviorism. हमने remember the chapter 1 जहाँ पे हमने the schools of psychology किया था, तो एक स्कूल था ना हमारा behaviorism. So behaviorism के जो फाउंडर थे, behaviorism के जो फाउंडर थे वो तो वॉटसन थे, बट डेफिनेटली उस फील्ड में हमने स्किनर का भी नाम मेंशन किया था क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी वेल नोन बिहेवियरिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क किया है. सो द वेल नोन साइकोलॉजिस्ट ऑफ द बिहेवियरिज्म इज दी B.F. स्किनर. उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट किया है एंड एज लाइक द इवन पैवलोव जैसे उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, B.F. स्किनर के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो रैट पे हैं. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रैट पे किए हैं. इवन एक इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप किया विच इज नोन एज स्किनर बॉक्स. ठीक है, एक स्किनर बॉक्स टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था, एक एपरेटस डेवलप किया था जिसमें इन्होंने रैट को रख के ये एक एक्सपेरिमेंट किया था. जिस तरह से पैवलोव ने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था उसी तरह से B.F. स्किनर ने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था. एंड this experiment is basically this type of conditioning basically known as SOR conditioning. ठीक है, जैसे वो हमारी SS conditioning थी, वहां पे जो कंडीशनिंग हो रही थी वो स्टूमुलस और स्टूमुलस के बिटवीन हो रही थी, स्टूमुलस से स्टूमुलस की कंडीशनिंग हो रही थी. बट ये जो कंडीशनिंग है दिस इज बेसिकली गिवन बाय B.F. स्किनर. ठीक है, स्किनर में डबल एन है, सिंगल एन है, स्किनर. ठीक है, एंड बेसिकली ये जो कंडीशनिंग है ये SR कंडीशनिंग है, स्टूमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, और यू कैन से द SOR कंडीशनिंग क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया गया. स्टूमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक चीज है जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल है. सो डेफिनेटली स्टूमुलस आया और इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्स किया, सो इंडिविजुअल की भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक एड ऑन होगी. सो डेफिनेटली दिस इज द SOR कंडीशनिंग, स्टूमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स. ठीक है, इसके पहले क्या था, स्टूमुलस रिस्पॉन्स. उसके पहले हमारा जो पैवलोव वाला था वो क्या था, दैट इज द SS, स्टूमुलस स्टूमुलस के बीच में कंडीशनिंग हो रही थी. यहाँ पे स्टूमुलस रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग हो रही है या स्टूमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, ये सीक्वेंस है. क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जैसे कि पैवलोव ने बताया कि हमारा जो स्टूमुलस और स्टूमुलस कनेक्टेड हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हो रहा है, कुछ एसोसिएशन है उन दोनों स्टूमुलस के बीच में, दैट्स व्हाई कंडीशनिंग हो रही है. जबकि B.F. स्किनर का ये कॉन्सेप्ट था कि हमारा रिस्पॉन्स कितना ज्यादा इफेक्टिव है. ठीक है, जितना अच्छा जितना इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा स्टूमुलस की कंडीशनिंग उतनी ज्यादा, स्टूमुलस रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी. मतलब फीडबैक जो हमें मिल रहा है. ठीक है, हम रैंडम रिस्पॉन्सेस करते हैं विच इज नोन एज ऑपरेशंस. ठीक है, ऑपरेशन क्या, ऑपरेंट्स. ऑपरेंट्स यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, ऑपरेंट होता क्या है, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग वाज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय B.F. स्किनर एंड स्किनर स्टडीड occurrence of voluntary responses
when an organism operates on the environment, and he called them operants. Operants, that means the random voluntary responses which are presented by the organism. अपने environment को explore करने के context में जो organism random responses करता है. सपोज आप एक चाइल्ड को कुछ दे दो, कोई भी ऑब्जेक्ट उसे दे के देखो, तो वो उसे हर एंगल से मूव करेगा, टच करेगा, छुएगा, उठाएगा, मतलब सब कुछ देखेगा. ये क्या कर रहा है? वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ उसे एक्सप्लोर कर रहा है, उसे जानने की कोशिश कर रहा है. और उसकी जो रिस्पॉन्सेज उसे हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. ठीक है, वो इनिशिएट कर रहा है, वो उसको जानने के लिए वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज कर रहा है, जो कि बेसिकली रैंडम रिस्पॉन्सेज हैं. उसमें से एक कोई सही तुक्का लग गया और सही हो गया. सपोज अगर वो टीवी का रिमोट लिया है, वो टीवी ऑन करने की कोशिश कर रहा है, वो उसे हर तरह से हर बटन को टच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. दीज आर द रैंडम रिस्पॉन्सेज which are voluntary, and suddenly he clicked the red button and the TV is on. So he learned that कि this is the appropriate key, this is the appropriate button जिसके थ्रू टेलीविजन ऑन होगा. सो ये उसने लर्न किया. किसके थ्रू लर्न किया? फीडबैक उसे जो मिला, उसे रिस्पॉन्स मिला ना, उसने रैंडमली कुछ भी क्लिक किया, कुछ भी उसने दबाया, एंड सडनली जब उसका बटन रेड बटन पे उसका फिंगर गया और उसने उसे प्रेस किया, सो सडनली टेलीविजन ऑन हो गया. एंड ही लर्न दैट कि दिस इज द राइट की, दिस इज द राइट की जिसको प्रेस करने से टेलीविजन ऑन होगा. ये उसने लर्न किया. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंडीशनिंग. कंडीशनिंग हुई किसमें? कंडीशनिंग हुई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में. ये स्टिमुलस जो था, जो हमारा बिहेवियर था, रैंडम रिस्पॉन्सेज थी, दिस इज नोन एज ऑपरेंट्स. ठीक है, इसी को हम ऑपरेंट्स कहते हैं. ऑपरेंट्स दैट मीन वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज, रैंडम रिस्पॉन्सेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग दी वर्ल्ड. ठीक है, जब आप एक अपने इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करते हो, उसे जानने की कोशिश करते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जितनी भी रैंडम और वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होती है, वो सारे ऑपरेंट्स होते हैं. ऑपरेंट्स आर दोज बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज which are imitated by animals and human beings. That means ये present होते हैं, imitate किसके थ्रू होते हैं? Organism and human beings के थ्रू, which are voluntary and are under their control. ठीक है, वो वॉलेंट्री होते हैं और उनके कंट्रोल में होते हैं. डेफिनेटली अगर आप ना चाहो कोई बिहेवियर करना, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो. दैट्स व्हाई दिस इज वॉलेंट्री एंड इन अंडर कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में होते हैं. सो दिस इज द ऑपरेशंस एंड ऑपरेंट्स. And the term operant is used because the organism operates on the environment, and conditioning of operants behavior is called operant conditioning. क्योंकि operants behavior कर रहा है, वो operants responses कर रहा है अपने environment के context में, and at the same time वहाँ पे conditioning हो रही है. किसके थ्रू conditioning हो रही है? उसके response के थ्रू. अगर appropriate response हो जा रहा है, तो उसके थ्रू उसकी conditioning हो जा रही है. So this is the form of conditioning. So that's why this is known as operant conditioning. इसीलिए हम इसे operant conditioning कह रहे हैं. And Skinner conducted his studies on rat and pigeons. Rat और pigeons पे भी इन्होंने study किया है. In a specially made box called the Skinner box. इन्होंने एक box develop किया था which is known as Skinner box, जिसमें इन्होंने rat को रख के experiment किया था. A hungry rat, ठीक है, one at a time is placed in the chamber which was so built that the rat could move inside but could not come out. ठीक है, लार्जर बॉक्स था वो, जिसके अंदर बेसिकली रैट को प्लेस्ड किया गया, और अब वो रैंडमली वहां पे मूव कर सकता था, बट डेफिनेटली वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ सकता था विदाउट एनी हेल्प. एंड इन द चैम्बर देयर वाज अ लीवर. लीवर दैट्स मीन अ रेड बटन. ठीक है, एक रेड बटन था, एक लीवर था, जिसे प्रेस करने से फूड आता था, which was connected to a food container kept on the top of the chambers, and when the lever is pressed, a food pellet drops on the plate placed close to the lever. ठीक है, जैसे ही वो लीवर प्रेस होता था, वो कंटेनर ओपन होता था, उसमें से एक ड्रॉप जो कि फूड पैलेट का उस प्लेट जो कि उस लीवर के जस्ट नियर थी, वहां पे वो गिर जाता था, और डेफिनेटली वो जो रैट था वो हंग्री था, तो उसे खा लेता था. See the figure 6.2. जब आप ये फिगर देखोगे 6.2, so you can see the whole experiment. ठीक है, this is called Skinner box, जिसमें रैट प्लेस्ड है, और यहाँ पे वो कंटेनर है, फूड कंटेनर. यहाँ पे रेड कलर का वो बटन है, जिसे प्रेस करने से यहाँ से फूड पैलेट ड्रॉप होता है, एंड फाइनली रैट उसे खा लेता है.
So when the lever is pressed, a food pellet drop on the plate placed close to the lever while moving around and popping the walls. That means the exploratory behavior, exploratory responses, and the hungry rat accidentally pressed the lever. Definitely उसे पता नहीं होता कि लीवर प्रेस करने से फूड आएगा एंड ही एक्सप्लोर जस्ट देयर बॉक्स. ठीक है, वो रैंडम एक्टिविटी करता है, एक्सप्लोरिंग बिहेवियर करता है एंड सडनली वो लीवर प्रेस हो जाता है. ऑन द प्लेसिंग ऑफ द लीवर देयर इज अ फूड, वो फूड प्रेजेंट हो जाता है. सो द हंग्री रैट eats it. And in the next trial, after a while, the exploratory behavior again started. And as the number of trial increase, जैसे जैसे इस तरह से number of trials increase कर देते हैं, देखा जाता है कि जो रैट है उसे जैसे ही उस बॉक्स में प्लेस किया जाता है, सडनली वो वहां जाती जस्ट रेड बटन प्रेस करता है, बिकॉज ही नो कि यहाँ से बस फूड पैलेट आएगा, मुझे यही दबाना है. सो वो किस तरह से ये चीजें लर्न करता है थ्रू द कंडीशनिंग. सो द रैट टेक्स lesser and lesser time to press the lever. ठीक है, रैंडमली पहले स्टार्टिंग में उसे जितना ज्यादा टाइम लगता था, सपोज उसने स्टार्टिंग फर्स्ट ट्रायल में 10 मिनट्स लिया, रैंडम रिस्पॉन्सेज करते रहा, एक्सप्लोरेटरी रिस्पॉन्सेज, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, एंड सडनली ही प्रेस द लीवर एंड इट टुक 10 मिनट्स. ठीक है, एंड जैसे जैसे ट्रायल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, उसका जो लीवर प्रेस करने का टाइम है वो डिक्रीज होता जाएगा. स्टार्टिंग में 10 मिनट्स, देन 8 मिनट, मे बी 5 मिनट, देन 4 मिनट, 2 मिनट. ठीक है, ऐसे ऐसे वो टाइम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो रैंडम उसको लगेगा ना कि बस यही तो ऐसा कुछ किया था, यहाँ कुछ दबा था जिसकी वजह से फूड आया था. ठीक है, सो वो ऐसे सोचेगा डेफिनेटली. सो सडनली अब उसको एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि रेड कलर का बटन दबाना है, उसी से फूड आ जाएगा. तो वो क्या करेगा, रैंडम रिस्पॉन्सेस करेगा, बस उसको इतना तो रिमेंबर रहेगा कि यहीं पे कुछ दबाया था, कि नेक्स्ट टाइम जो हमने पहले खाया था वो यहीं पे कुछ ऐसे हुआ था बिहेवियर जिसकी वजह से वो फूड आया था. एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रायल्स इंक्रीज हो जाएंगे, वो लर्न कर लेगा कि दिस इज द की, दिस इज द लीवर जिसे प्रेस करने से फूड प्रेजेंट होता है. सो डेफिनेटली जब उसे रखा जाएगा उस स्किनर बॉक्स में, तो वो सडनली वो लीवर प्रेस करेगा और फूड प्रेजेंट हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट गिवन बाय स्किनर ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट. एंड दिस फिनोमेना we will continue in the next video. Thank you so much, class.